Is on. Very good evening, friends. Today we will start with section 55 and 56. Section 55 talks of fast track corporate insolvency resolution process. This fast track corporate insolvency process is also covered in part 2. So, part 2, as we know, relates to corporate persons. So, this chapter, it talks of certain categories of people with assets and income below a specified level, with such class of creditors or such amount as may be specified and such other categories as may be notified. So, in certain classes of corporate persons, the governments may notify or specify certain levels of income and assets which can undergo this fast track process. And the time limit in fast track process is just half. As in CIRP, it is 180 days plus one time extension of 90 days plus 60 days if lost in litigation. Here, the time limit is 90 days and extension is for 45 days only. And any extension beyond 90 days has to be applied by here with vote share of 75% as against 65% in case of corporate persons. How to apply? What is the manner? So, an application, it can be filed by a creditor or a corporate debtor. So, here the distinction between the financial creditor and the operational creditor also disappears. So, it can be filed by either the creditor or the debtor along with proof of existence of default as evidenced by records available with an information utility or such other means and such other information. And the process of conducting CIRP, it will relate to this also, this process also. So, this is in brief fast track. Now, let us see the regulations related to this fast track process. So, it talks of corporate debtors. अच्छा ये वाला अभी I don't think it is visible to you. Let me share this screen. Share screen. Now I think this screen is visible. Fast track process, insolvency resolution process. So it talks of, मेरी स्क्रीन नजर आ रही ना आपको? Yes. ओके, सो इट टॉक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स. पहली बात कॉर्पोरेट डेटर्स की बात कर रहा है, पार्ट 2 के अंदर है, विद एसेट्स एंड इनकम विद सच क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एंड सच अदर कैटेगरीज. कौन कौन इसमें एप्लीकेशन दे सकता है? As we know, we are in part 2 of IBC. Part 2 talks of corporate persons. Now in corporate persons also there is a separate class carved out. Assets and income below a specified level with such class of creditors, such other categories. So small sized companies are covered. Startup companies other than a partnership company are covered, and an unlisted company with total assets not exceeding 1 crore rupees is covered. So these are the class of companies which are covered. Now let us see what is a small company. So the definition of small company has also changed. Small company defined in section 285 means a company other than a public company whose paid up share capital does not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than rupees 5 crores. So this was the limit up to a certain stage. We will have to check with IBBI regulations whether the new definition of small company which talks of 200 lakhs, whether that is applicable or this is applicable. I could not find the latest fast track regulations. So these are the, I think these are the regulations which are available on this IBBI website. But for definition of small company, we can always refer to Companies Act. So this was the definition up to a certain point. We will have to check the cutoff date whether this definition is applicable or
another amended definition which talks of capital does not exceed 200 lakhs is there. Anyway, so let us study this definition for the time being. You can also write in the group whether this definition is there or any other definition. You can also check with IBBA regulations. I could not find the regulations which are updated beyond this. So whose paid up share capital does not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 5 crores, and turnover of which as per profit and loss count for the immediately preceding financial year does not exceed rupees 2 crores or such higher amount as may be prescribed. 1 minute. Just a minute. Yes. So small company, it talks of that paid up capital does not exceed 50 lakhs. I think this will be the limit applicable for your syllabus, because up to, although there is a change in definition, but I think this definition will be applicable in your case. So it talks of paid up capital does not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 5 crores, and turnover of which as per profit and loss count for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crores or such higher amount. So paid up capital and turnover you have to see, provided that nothing in this clause shall apply to a holding company or a subsidiary company, section 8 company, or a company or body governed by any special act like say electricity company or banking company, etc. So first of all, you have to see whether your company is covered under this small company definition or not. If it is a small company, then you can go in for fast track. Next, then definition of startup, because there are only certain categories of companies. One is the small sized company, another is startup other than partnership firm. Small company, we have seen the definition. Paid up capital does not exceed 50 lakhs, it means up to 50 lakhs. Turnover does not exceed 2 crores, provided that nothing in this clause shall apply to a holding company or a subsidiary company. So if it is a holding company or a subsidiary company, then you cannot cover yourself under this fast track process. If you are a section 8 company, then you are out. If you are a company or body corporate governed by any special act like say electricity company, banking company, or some other company, then also you cannot cover yourself under this fast track process. Then this definition of startup. An entity shall be considered as a startup if it is satisfies all the following conditions. क्या क्या conditions हैं इसमें? पहला, if it is incorporated or registered as any of the following, it could be a private limited company, it could be a partnership company, but partnership firm is specifically barred from here. It says other than partnership firm. LLP, one person company, but we are seeing the definition of startup from here. LLP and one person company, provided that such entity is not formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence. It has not completed 10 years since incorporation, because startups are entitled for certain categories of privileges, say in income tax, etc. So it talks of definition of a startup. What is the definition? So private limited company, partnership although is specifically barred from here, LLP, one person company, provided that it has not completed 10 years, its turnover does not exceed 100 crores, and it satisfies any one of the following conditions. It is working towards innovation of new products, processes, services, development of new products, processes, improvement of existing products, processes. And it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. You have to register yourself as a startup if you want to avail this category of fast track process. Now regarding the time limit, as most of the provisions which are applicable in case of CIRP, they are applicable to this fast track process also. So time limit is just half in this case. So fast track process, it shall be completed within a period of 90 days. CIRP कितने दिन में complete होता है? 180 days में. ये कितने दिन में complete होगा? 90 days में. 90. And the resolution professional shall file an application to the adjudicating authority to extend the period of the fast track insolvency process beyond 90 days
if instructed to do so by a resolution passed at a meeting of the committee of creditors and supported by a vote of 75% of the voting share. On receipt of an application under subsection 2, if the adjudicating authority is satisfied that the subject matter of the case is such that fast track process cannot be completed within a period of 90 days, then it may extend up to 45 days. जैसे वहां पर कितना होता है 180 डेज होता है, एक्सटेंशन कितना मिलता है 90 डेज. यहाँ पर प्रोसेस आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है 90 डेज में, और एक्सटेंशन कितना मिलेगा 45 days maximum, not exceeding 45 days, provided that any extension of the fast track process अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन. तो एक ही बार एक्सटेंशन मिलता है, जैसे वहां पर भी वही है कि एक ही बार आपको एक्सटेंशन मिलता है. ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया. इसमें लगाना क्या क्या है आपको, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट. आप अगर फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हो तो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट दिखाना पड़ेगा. ठीक है, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है, और जो भी दूसरे रिकॉर्ड जो में भी स्पेसिफाइड. ठीक है, बाकी सारे प्रोविजन CIRP वाले वो इसी चैप्टर पर लगेंगे. अब इनको देखते हैं हम, ये क्या कहते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसेस रेगुलेशंस. इसमें मेजर बात देख लेते हैं. एक तो ये कि डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर. डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर मैंने उस दिन भी बताया था कि डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, हु हैज वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्लान. जैसा कि हमें मालूम है कि 66% मेजोरिटी से आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पर 75% मेजोरिटी है, ठीक है, फास्ट ट्रैक में, तो अब अगर 66% ने कोई अप्रूवल दिया है, इसका मतलब 34% आर अगेंस्ट इट, या 90% ने अगर अप्रूव किया तो 10% आर अगेंस्ट इट. जो अगेंस्ट है उनको कहते हैं हम डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु हैव वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्लान और हु हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर द रेजोल्यूशन प्लान. ठीक है, फिर इवेल्यूशन मैट्रिक्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन CIRP ऑल्सो कि इवेल्यूशन मैट्रिक्स कंटेन्स सच पैरामीटर्स विच आर टू बी अप्लाइड and the manner of applying such parameters as approved by the committee for consideration of resolution plan for its approval. ठीक है, then fair value क्या है? Fair value means the estimated realizable value of the assets of the corporate debtor if they were to be exchanged on the insolvency commencement date. देखिए दो चीजें, एक तो होती है fair value, एक होती है liquidation value. जैसा आपका CIRP प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें जो IRP होता है वो लिक्विड उसको वैल्यूअर को अपॉइंट करता है विद इन 7 days, मैक्सिमम विद इन 47 days. वो फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू असेस करके देते हैं. फेयर वैल्यू ये है कि भाई कोई जब वो जोर जबरदस्ती नहीं है, उस पर प्रेशर नहीं है बेचने का, तो फेयर वैल्यू वो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है कि इफ दे वर टू बी एक्सचेंज ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बिटवीन विलिंग बायर एंड ए विलिंग सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन आफ्टर प्रॉपर मार्केटिंग एंड वेयर द पार्टीज हैड एक्टेड knowledgeably, prudently and without compulsion. ये होती है फेयर वैल्यू. ठीक है, तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस तो हो ही गया. एंड फास्ट ट्रैक प्रोसेस पीरियड क्या है? फास्ट ट्रैक प्रोसेस पीरियड ये है, ये 90 डेज का पीरियड है आपका. ठीक है जी, तो इट मीन्स द पीरियड ऑफ 90 डेज बिगिनिंग फ्रॉम द फास्ट ट्रैक रिकमेंडेशन डेट, रिकमेंडमेंट डेट टू एंड एंडिंग ऑन द 90th डे. ठीक है, जैसे वहां पर CIRP में 180 डेज है तो ये 90 डेज है. आगे चलते हैं. आइडेंटिफिकेशन नंबर. आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब LLP का आइडेंटिफिकेशन नंबर. फिर फास्ट ट्रैक, इसमें कोई खास बात नहीं है. लिक्विडेशन वैल्यू क्या है? लिक्विडेशन वैल्यू है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इफ द कॉर्पोरेट डेटर वर टू बी लिक्विडेटेड ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. ठीक है, और आगे देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो इसमें ये फिर जो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया हमने CIRP में भी देखा था, यहाँ पर भी सिमिलर क्राइटेरिया है. नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट. भाई जो भी हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो रहा है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय या प्रोपराइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए. किसका? किसी फर्म ऑफ ऑडिटर का. मान लो आप एक ऑडिटर हो, ठीक है, आप ऑडिटर हो खुद या पार्टनर हो ऑडिटर के या एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो सकते. ठीक है, हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोपराइटर और ए पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट ऑडिटर्स. ठीक है, या ऑफ ए लीगल और कंसल्टिंग फर्म which has or had any transaction with the corporate debtor amounting to 10% or more of the gross turnover. ठीक है, मैंने उस दिन भी इसमें बताया था. ये क्या है? सिमिलर से प्रोविजन है. जैसे हमने CIRP में पढ़ लिए तो लिक्विडेशन में भी सिमिलर से हैं. तो लिक्विड यहाँ पर क्या बोलता है, मतलब फास्ट ट्रैक पे
ये बोलता है कि भाई 10% आपका टर्नओवर से ज़्यादा वहाँ से नहीं आना चाहिए। कौन सी? किसी भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म जिसकी कोई ट्रांजैक्शन रह चुकी है कॉर्पोरेट डेटर के पास। आप एक कंसल्टिंग फर्म है, आपकी टोटल टर्नओवर 20 करोड़ है और 20 करोड़ में से 20 करोड़ में से आपको 10 करोड़ रुपए उसी कंपनी से मिल गए जो कंपनी सीआईआरपी में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब 50% आपकी टर्नओवर कॉर्पोरेट डेटर से होगी। ठीक है ना, तो आप उस फर्म के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन सकते। ठीक है, अगर 10% से ज्यादा आपकी टर्नओवर है तो एट एनी टाइम इन दी प्रीसीडिंग 3 years। ठीक है, सर 10% है तो लिखता है अमाउंटिंग टू 10% और मोर। 10% पर भी नहीं बन सकते, ठीक। और मोर लिख दिया ना। 10% हाँ मतलब 9.99 हो सकती है, 10 नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ जी। An insolvency professional shall not be eligible to be appointed as a resolution professional if he or the insolvency professional entity of which he is a partner or director is under a restraint order of the board। ठीक है, कोई restraint order आपके पास बोर्ड से आया हुआ है। ठीक है ना, कि भाई कई बार क्या होता है, बोर्ड एक ऑर्डर इशू कर देता है कि भाई आप 1 साल तक एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, कोई मिसकंडक्ट हो गया तो उस केस में अगर आप या आपका पार्टनर या डायरेक्टर इज अंडर ए रिस्ट्रेंट तो भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते एज आरपी। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल मेक डिस्क्लोजर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड देयर आफ्टर। ठीक है, तो फॉर्म 2 होता है इसमें। फॉर्म 2 होता है जब इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, और बाद में भी आपको डिस्क्लोजर करना है कि आई एम क्वालिफाइड टू बी रिटेन्ड एज insolvency professional. An insolvency professional shall not continue as a resolution professional if the insolvency professional entity of which is a director or partner or any other partner or director entity represents any other stakeholder in the same fast track process। क्या होता है कि आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो। ठीक है, दूसरा पार्टनर जो है वो किसी दूसरी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? आप आपके क्रेडिटर कौन होते हैं? आपके क्रेडिटर बैंकर होते हैं। ठीक है ना, अब बैंकर ने आपके ही पार्टनर को एंगेज कर लिया कि भाई आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे इस आईबीसी प्रोसीडिंग में। ठीक है ना, तो उस केस में आप कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। आप टेबल के एक साइड इधर बैठे हो। ठीक है, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर की तरफ क्रेडिटर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप ही का पार्टनर है। ठीक है, या आप ही की एंटिटी में डायरेक्टर है, तो आप यू कैन नॉट कंटिन्यू एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये है जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर एक्सेस टू बुक्स। एक्सेस टू बुक्स में भी वो सब जैसे सीआईआरपी में भी है वही सब है। डिपॉजिटर से आपको कोई भी एक्सेस चाहिए, जैसे मान लो किसी बंदे का कोई डीमैट अकाउंट है कंपनी का। ठीक है ना, तो वहां से कोई उसका ऑडिटर है, उससे आप इंफॉर्मेशन चाहोगे। प्रोफेशनल एडवाइजर है, भाई इंफॉर्मेशन तो आप लोगे ना लोगों से, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, अदर रजिस्ट्रीज, ये सारे। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हमें मालूम ही है क्या है। उसमें कोई एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट आपको करनी पड़ रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट प्रोवाइडेड, या टर्म्स जो है वो अनकॉन्शनेबल है, मतलब अनरीजनेबल है। ठीक है, फिर इसमें जो पब्लिक अनाउंसमेंट आपको करनी है, पब्लिक अनाउंसमेंट भी यहाँ पर इमीडिएटली करनी है, नॉट मोर देन 3 days, जैसे कि सीआईआरपी में है वही प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ पर भी फॉर्म ए में है और इस तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट आपको करनी है। और जो एप्लीकेंट है इट शेल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट। अब यहां पर फास्ट ट्रैक में आपको देखो 10 दिन मिले। ठीक है ना, जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम है ये 10 days है। सीआईआरपी में हमने कितना पढ़ा था? 14 days था। लिक्विडेशन में कितना पढ़ा था? 30 days था। यहां पर 10 days है। तो ये सारे हमें याद करने पड़ते हैं। वैसे मैं आपको चार्ट्स प्रोवाइड करा दूंगा तो चार्ट्स में सब होगा। ठीक है, द एप्लीकेंट शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट विच में बी रिइंबर्स्ड बाय द कमेटी टू द एक्सटेंट इट रेटिफाइज देम। तो जो पब्लिक अनाउंसमेंट है तब तक क्या होता है, कमेटी तो बनती नहीं है। ठीक है ना, पब्लिक अनाउंसमेंट तो जैसे आईआरपी अपॉइंट हुआ, पब्लिक ये अपना पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है इमीडिएटली विद इन 3 days। तो एप्लीकेंट बियर करेगा, अगर कमेटी रिइंबर्स कर देगी ठीक है, अगर कमेटी रिइंबर्स नहीं करती तो खुद जेब से देने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन द एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट होती है, सीआईआरपी कॉस्ट होती है, ऐसे ही फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट होती है। फिर क्लेम बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये क्लेम के लिए फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, बी सी डी वगैरह जैसे जैसे है अलग अलग फॉर्म्स हैं। क्लेम्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में फॉर्म सी में है क्या क्या आपको लगाना है। ये जो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स मैंने आपको पढ़ाया था
फर्स्ट या सेकेंड डे में, उसमें भी ये सब बताया था कि कौन कौन से फॉर्म CIRP में लगते हैं। तो ऐसे ये फास्ट ट्रैक के फॉर्म है। क्लेम बाय वर्कमैन फॉर्म डी में है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो फॉर्म है, अगर वर्कमैन या एम्प्लॉयज़, मान लो 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉय तो खुद क्लेम फाइल करेंगे नहीं, वो किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करेंगे, तो उस केस में वो फॉर्म ई भरेंगे फिर। ठीक है, और उसके साथ क्या क्या रिकॉर्ड लगाना है ये सब इसमें दिया गया है। अगर कोई अदर क्रेडिटर है तो फॉर्म एफ है। ठीक है, और सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम जो IRP या RP कुछ और भी आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि जो आपने क्लेम सबमिट का टाइम दी थी। ठीक है, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं इसमें। चलिए बाद में करते हैं, उसको छोड़ते हैं, अभी जो कर रहे हैं उसी पे चलते हैं हम। यहाँ पर थे हम। तो ये हो गया हमारा सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम। फिर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स के लिए क्या है, 7 दिन मिलते हैं। जैसे वहाँ पर कितना है, वहाँ पर भी आपको 7 दिन मिलते हैं, CIRP में भी, तो यहाँ पर भी 7 दिन है आपके पास। तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स shall be made available for inspection by the persons who submitted proof of claim, अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर। जो भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर है ये इनको अवेलेबल रहती है फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, वेबसाइट पर भी डिस्प्ले कर देते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी फाइल कर देते हैं, एंड बी प्रेजेंटेड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। अगर कोई अमाउंट प्रिसाइज नहीं है, कई बार क्या होता है, मान लो कंस्ट्रक्शन क्लेम है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, क्लेम नहीं प्रिसाइज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन ड्यू टू एनी कॉन्टिजेंसी, तो IRP या RP क्या करेगा, ही विल मेक बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द क्लेम। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन है। भाई अगर किसी ने गुड सप्लाई किए हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, काम किया हुआ है, अभी बिल भी नहीं किया, अब ये अपना बिल रेज कर रहा है या डिमांड नोट रेज कर रहा है। ठीक है ना, तो वो प्रिसाइजली कैसे तो बेस्ट एस्टिमेट उसमें करते हैं RP। The IRP or the RP, as the case may be, shall revise the amount of claims admitted, including the estimate of claims, as soon as may be practicable when receives additional information. अगर additional information मिलती है तो उस claim को revise भी किया जा सकता है। अगर कोई debt foreign currency में है तो उनका conversion कैसे होगा, they will be converted at the official exchange rate as on the fast track commencement date। ठीक है, फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी है आपको। कमेटी ऑफ क्रेडिटर में क्या है कि आपको जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको शामिल करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कमेटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर है, कोई डेट फ्री कंपनी है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो इशू है ही नहीं, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही आएंगे उसमें। लेकिन कोई डेट फ्री कंपनी है या जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो रिलेटेड पार्टी है। फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हमने पढ़ा था CIRP में, अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो COC का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें कोई डेट है ही नहीं, उसमें सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो 18 लार्जेस्ट क्रेडिटर्स ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स लेस देन 18, तो सारे ले लेंगे। ठीक है, मान लो 10 ही क्रेडिटर हैं तो 10 के 10 शामिल कर लेंगे। मान लो 20 हैं, 20 में से 18 लार्जेस्ट जो टर्म्स ऑफ वैल्यू में हायर है उनको ले लेंगे। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे वर्कमैन का, अदर देन दोज वर्कमैन इंक्लूडेड अंडर सब क्लॉज ए। अगर क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है, ऑपरेशनल क्रेडिटर में ये है कि भाई एम्प्लॉय भी तो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, अगर ऊपर वाले में शामिल हो गया तब तो ठीक है, अगर ऊपर वाले में शामिल नहीं हुआ तो एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का ले लेंगे। भाई कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसमें 100 सप्लायर हो, एक कंपनी ऐसी हो सकती है जिसमें 2 सप्लायर हो, अगर 2 सप्लायर होंगे तो क्रेडिटर को भी ऊपर ही ले लेंगे, वर्कमैन को भी। ठीक है, वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉयज अदर देन दोज एम्प्लॉयज, तो ये एक वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव, एक जो है एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एंड एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल हैव वोटिंग राइट्स in proportion of the debt due to such creditor or debt represented by such representative as the case may be to the total debt। ठीक है, टोटल डेट 100 करोड़ है, जिसका मान लो 10 करोड़ है उसके बाद 10% वोटिंग राइट आ जाएगा, 2 करोड़ है तो 2% आ जाएगा, इस तरह से। सर अगर सपोज 100 रुपीज है तो हाँ, सबको एक एक रुपया लेना है, 100 क्रेडिटर होगी तो 18 कौन से लेंगे?
तो ऐसा 70%। ऐसा है, फिर उसमें ना पीरियड देखा जाएगा, उस केस में पीरियड देखा जाएगा कौन सा पहले पहले ड्यू था, उसको मिल लेंगे फिर हम। अच्छा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज द बेस्ट जज। भाई ये अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ऐसा कई बहुत सारी चीजें नहीं लिखी रहती इसमें। तो हम्म। मेरे मेरे हिसाब से तो अगर मैं होता तो मैं तो ये करता, जो पुराना हो उसको लेंगे हम। हम्म। अगर फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन तो कर ही सकते हैं ना, फिर वहां जाएंगे। ऐसा होता नहीं वैसे, हाइपोथेटिकल ज्यादा सिचुएशन रहती हैं। अगर ऐसा हो भी गया, मान लो ठीक है एग्जैक्टली ऐसा हो ही गया, तो फिर उस केस में पुराने वाले को लेंगे, क्योंकि पुराने वाले का इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया ना। हम्म। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रेगुलेशन, टोटल डेट का मतलब क्या है? टोटल डेट का मतलब है अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू द क्रेडिटर्स लिस्टेड इन, ये तो हो गया हाँ, listed in sub regulation 2A, फिर अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू वर्कमैन, ड्यू टू एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड ए कमेटी फॉर्म्ड अंडर दिस रेगुलेशन, इट्स मेंबर शैल हैव द सेम राइट्स एज ए कमेटी कंप्राइजिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और इट्स मेंबर्स, ठीक है। फिर फाइलिंग्स बाय द IRP, ये IRP जो है ये क्या करेगा, 21 डेज में एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, certifying the constitution of the committee to the adjudicating authority on or before the expiry of 21 days. Based on the records of the corporate debtor and claims, अभी वैसे कोई कंपनी फास्ट ट्रैक में आई नहीं है, ये सिर्फ रेगुलेशन हम पढ़ते हैं थ्योरी पर्पज से। Based on records of the corporate debtor and claims, if the IRP is of the opinion that the fast track is not applicable, ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि भाई फास्ट ट्रैक इस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको नॉर्मल सी IRP में बदल देगा, ठीक है। अगर IRP भाई फास्ट ट्रैक की हमने कुछ कंडीशंस पढ़ ली कि इस कंपनी पर लगेगा, ठीक है, इतनी टर्नओवर होनी चाहिए, इतनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, या स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर उसको लगता है कि भाई इस पर एप्लीकेबल नहीं है फास्ट ट्रैक, तो उसको नॉर्मल सी IRP में बदल देगा, ठीक है। If the adjudicating authority passes an order converting fast track into CIRP, the process shall be carried on in accordance with वो, उन पे फिर दूसरे वाले CIRP वाले रेगुलेशंस लग जाएंगे, यही है। एंड IRP इसको करनी है फर्स्ट मीटिंग कन्वीन विद इन 7 डेज, ठीक है। जैसे वहां पर भी 7 डेज है तो यहां पर भी 7 डेज है। और मीटिंग ऑफ द कमेटी, ये जब भी ठीक समझेगा RP विल कंडक्ट द मीटिंग, या 33% जब लोग कहेंगे तो ये बुला सकता है मीटिंग, ठीक है। लिक्विडेशन में कितना था, लिक्विडेशन में शायद 51% था, है ना, चेक कर लीजिएगा कि लिक्विडेशन में परसेंटेज कितनी है। यहाँ पर 33% जब कहेंगे मेंबर्स तो बुला सकते हैं। नोटिस फॉर मीटिंग्स ऑफ द कमेटी, यहाँ पर नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस है, ठीक है। जैसे वहाँ पर 5 डेज नोटिस होता है, तो यहाँ पर क्या है कि 7 डेज मीटिंग है, ठीक है। एंड द कमेटी में रिड्यूस द नोटिस पीरियड फ्रॉम 7 डेज टू सच अदर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर्स एज इट में डीम फिट। सर्विस ऑफ नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ये नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैसे भेजना है आपको, ईमेल से भेजना है, एज ए टेक्स्ट या एज अटैचमेंट भेजना है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ PPT, ठीक है जी। और ये कुछ नहीं है, ये जो रेगुलेशंस हमारे IBBI की वेबसाइट पे रेगुलेशंस दे रखे हैं ना, ये वही है। फिर कंटेंट्स उसमें क्या रहेंगे, इसमें ये रहेगा वेन्यू रहेगा, टाइम डेट वगैरह जो भी है, ठीक है ना। उसमें ये रहेगा कि भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन्स से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल प्रोवाइड दैट ए क्रेडिटर मे अटेंड एंड वोट इन द मीटिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, provided that such creditor shall inform the resolution professional in advance of the meeting of the identity of the authorized representative who will attend and vote at the meeting on its behalf। तो जितने भी मीटिंग होती हैं COC की, उसमें क्या होता है, रोल कॉल ली जाती है, रोल कॉल में आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। या तो इन पर्सन होगा, या फिर अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको पहले बताएगा क्रेडिटर कि भाई ये बंदा ये करेगा और उसकी ये आइडेंटिटी होगी, ठीक है। नोटिस में क्या रहेगा, एजेंडा रहेगा, लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी वोटेड अपॉन, मतलब डिस्कस क्या करना है, वोट किस किस पर होना है, एंड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट टू द मैटर टू बी डिस्कस्ड एंड द इश्यूज टू बी वोटेड अपॉन एट द मीटिंग। और नोटिस ऑफ मीटिंग जो है, इट शेल स्टेट द प्रोसेस एंड द मैनर फॉर वोटिंग एंड द टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड
ड्यूरिंग विच द वोट्स में बी कास्ट। ठीक है, तो वो बताते हैं उसमें कि भैया ये आपको फॉर 24 आवर्स खुली है वोटिंग या 48 आवर्स, इस तरह से। प्रोवाइड द लॉगिन आईडी एंड डिटेल्स ऑफ द फैसिलिटी फॉर जनरेटिंग पासवर्ड एंड फॉर कीपिंग सिक्योरिटी एंड कास्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वोट इन अ सिक्योर मैनर। तो ये सारा बता देते हैं भाई आपको ऐसे लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, पासवर्ड जनरेट करना, ये सब। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु विल, अगर आपको कोई क्वेरीज हैं वोटिंग से रिलेटेड तो वो कौन अटेंड करेगा, ये भी इसमें बता देते हैं। फिर मीटिंग में कोरम क्या रहेगा? मीटिंग में कोरम रहेगा 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट आइदर इन पर्सन और बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन, मतलब 1/3 रहेगा, 33% रहेंगे तो कोरम है वो। प्रोवाइडेड दैट द कमेटी में मॉडिफाई द परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स रिक्वायर्ड फॉर कोरम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्यूचर मीटिंग्स ऑफ द कमेटी। ठीक है, अगर मान लो कोरम नहीं है, 33% नहीं आए, तो अनलेस द कमेटी हैज प्रीवियसली डिसाइडेड, जो मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न एट द सेम टाइम एंड प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, और अगर एडजर्न मीटिंग में जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वही कोरम मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 33% से कम होंगे नॉर्मली, तो कम होंगे तो कम को भी कोरम मान लिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसमें क्या होगा, जो नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग है वो बताएगा, ऑप्शन देगा कि भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो एंड विजुअल मीन्स के थ्रू भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। और जो आरपी है, ही विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एंड क्लियर वीडियो एंड ऑडियो एंड विजुअल कनेक्शन। और इसमें यह है कि इंटेग्रिटी इंश्योर की जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, to record proceedings and prepare the minutes, to store for safekeeping and marking the physical recordings or other electronic, to ensure no person other than the intended participants attends। ठीक है ना, तो जो एंटाइटल्ड हैं सिर्फ वही अटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती हैं भाई, कंपनी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। टू एंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग द मीटिंग आर एबल टू हियर एंड सी इफ एप्लीकेबल द अदर पार्टिसिपेंट्स क्लियरली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन्स हु आर डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है ना, मान लो कोई डेफ एंड डम्ब है, कोई ब्लाइंड है, तो दे मे रिक्वेस्ट द आरपी टू अलाउ ए पर्सन टू accompany him at the meeting. Where a meeting is conducted through video conferencing, the scheduled venue of the meeting, which shall be in India, shall be deemed to be the place of the said meeting। क्योंकि प्लेस मान लो भाई ऑडियो विजुअल में क्या होगा, ठीक है, तो जहाँ पर मीटिंग कंडक्ट हो रही है वही मान लिया जाएगा। And all recordings of the proceedings at the meeting shall be deemed to be made at such place। ठीक है, कंडक्ट ऑफ मीटिंग, ये चेयरपर्सन होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और कमेंसमेंट में सबसे पहले क्या करेगा, ये जो जैसे हम ये रेगुलेशंस पढ़ लेंगे ना, तो CIRP रेगुलेशंस भी हमने पढ़ने हैं, हमने उसके लिक्विडेशन वाले प्रोसेस के भी रेगुलेशंस पढ़ने हैं, सेम से हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत डेज वगैरह का फ़र्क है, टाइम का फ़र्क है, तो उसका हम अगर चार्ट बना लेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, आरपी विल टेक अ रोल कॉल। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, उसका नाम रिकॉर्ड करेगा, भाई वो एज कैपेसिटी ऑफ ए मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है या एज एनी अदर पार्टिसिपेंट, वेदर इज रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर और ए ग्रुप ऑफ मेंबर, लोकेशन वो कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या उसको एजेंडा मिल गया। ठीक है, क्योंकि बाद में कई लोग कह देते हैं कि भाई हमें तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला, दैट नो वन अदर देन हिम इज अटेंडिंग और हैज एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एट द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, ये उससे कंफर्म कर लिया जाता है। रोल कॉल के बाद में आरपी जो है वो पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करेगा कि भाई कौन कौन से लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये बताएगा कि क्या रिक्वायर्ड कोरम प्रेजेंट है, कोरम है 33%। और ये कि ये कोरम पूरी मीटिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई शुरू में कोरम है बाद में नहीं है। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग टिल इट्स कंक्लूजन। ठीक है, नो पर्सन अदर देन द पार्टिसिपेंट्स एंड एनी अदर पर्सन whose presence is required is required by the resolution professional shall be allowed access to the place where meeting is held or to the video conferencing or other audio and visual facility without the permission of the resolution professional। ठीक है, तो किसी और को एक्सेस नहीं दी जाएगी फ्रॉम द कमेंसमेंट टिल द कंक्लूजन। जो भी ऑथराइज पार्टिसिपेंट हैं सिर्फ वही अटेंड कर सकते हैं। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल इंश्योर that the minutes are made in relation to each meeting of the committee and such minutes shall disclose the particulars of the participants who attended the meeting। तो जो भी मिनट में भी ये बताया जाएगा कि किन किन ने अटेंड की। ठीक है,
और ये सर्कुलेट करने हैं आपको विद इन 48 आवर्स, ठीक है। फिर वोटिंग कैसे होगी, द एक्शंस लिस्टेड शैल बी, ये सबसे पहले तो ये कि एजेंडा में ही आपने लिख दिया था, ठीक है। तो पहले तो ये है कि जो एक्शंस लिस्टेड इन सेक्शन 28(1) शैल बी कंसिडर्ड इन मीटिंग्स ऑफ द कमेटी. Any action other than those listed in section 28(1) may be considered in the meetings of the committee. ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये क्या करेगा, ही विल टेक ए वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और सर्कुलेट करेगा बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विद इन 48 आवर्स. ही विल सीक ए वोट ऑन द मैटर्स लिस्टेड फॉर वोटिंग. जिन्होंने, भाई ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने पार्टिसिपेट ना किया हो, ठीक है, तो उनको भी इन्फॉर्म करते हैं, उनका भी वोट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. और डिड नॉट वोट एट द मीटिंग इफ एनी बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो उनको कह देते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिकली ये मीटिंग खुली है, वोटिंग खुली है, आप 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आप वोट करो, ठीक है. वेयर द वोटिंग शैल बी केप्ट ओपन फॉर 24 आवर्स फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ द मिनट्स, ठीक है. तो कई बार क्या होता है, मान लो मीटिंग में लोग आए नहीं, तो उनमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली फिर उनसे ओपिनियन लेते हैं विद इन 24 आवर्स. तो एट द एंड ऑफ द वोटिंग पीरियड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पोर्टल शेल फोर्थ विद बी ब्लॉक्ड, ठीक है. नॉर्मली उसके लिए एक वोटिंग एजेंसी ये हायर कर लेते हैं जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा देती है. वंस ए वोट ऑन रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय ए मेंबर, तो उसको वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. और आरपी क्या करेगा, विद इन 24 आवर्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग और 48 आवर्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग इफ नो इलेक्ट्रॉनिक वोट इज रिक्वायर्ड टू बी सॉट, ठीक है. भाई दो सिचुएशन होगी, एक तो ये कि वहीं पर ही बंदे आ गए, सबने वोट कर दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर लोग नहीं आए, 24 आवर और खोलना पड़ा इलेक्ट्रॉनिकली, तो फिर 48 आवर्स में क्या करना है, इसको ये ये सर्कुलेट करने पड़ेंगे बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन द डिसीजन ऑफ द कमेटी, ठीक है, अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी हु वोटेड फॉर और अगेंस्ट द डिसीजन और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. तो इसमें पूरा चार्ट बना लेते हैं भाई किन्होंने कितनी क्या क्या रेजोल्यूशन थी, उस रेजोल्यूशन में कितनों ने फॉर वोट किया, कितनों ने अगेंस्ट में वोट किया, कितनों ने एब्सेंट में वोट किया. और ये परसेंटेज रहती है, परसेंटेज इसलिए रहती है भाई 66%, 75% आपको देखना है ना कि मेजोरिटी उसमें हुई या नहीं हुई. और ये परसेंटेज कैसे रहती है, परसेंटेज रहती है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेट, जितना जिसका अमाउंट ऑफ डेट होता है उस हिसाब से. For the purpose of these regulations, the expression voting by electronic means and its grammatical variant or electronic voting system means a secure system based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members of the committee and the number of votes polled in favor or against, such that the voting exercise by way of electronic means gets registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate cyber security. ठीक है, ये खास बात नहीं, आगे देखते हैं. फिर कंडक्ट ऑफ द फास्ट ट्रैक प्रोसेस, इसमें क्या है, इसमें आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करना है. जैसे सीआईआरपी में आपको 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करने होते हैं, ठीक है. अगर 2 का भी मैच नहीं करता, ज्यादा डिफरेंस है, तो उस केस में 2 से ज्यादा भी अपॉइंट होते हैं. लेकिन फास्ट ट्रैक में आपको एक ही अपॉइंट करना है टू डिटरमिन द फेयर वैल्यू एंड द लिक्विडेशन वैल्यू. कौन किस किस को आप अपॉइंट नहीं कर सकते रजिस्टर्ड वैल्यू, जो रिलेटिव है, रिलेटेड पार्टी है, या ऑडिटर रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 5 years, ठीक है, या पार्टनर या डायरेक्टर रहा ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ विच द आरपी इज ए पार्टनर और डायरेक्टर, ठीक है. अगर किसी का डेट असाइन हो गया, ट्रांसफर ऑफ डेट ड्यू टू क्रेडिटर, अगर किसी क्रेडिटर ने अपना डेट असाइन कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों पार्टीज वो जो असाइनमेंट डीड है, जो ट्रांसफर डीड है, और जो आइडेंटिटी है ऑफ द असाइनी और ट्रांसफरी, वो इसको प्रोवाइड कराएंगे आरपी को कि ये जी ये डेट हमें असाइन हो गया है, ठीक है. एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल नोटिफाई ईच क्रेडिटर एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ एनी रिजल्टेंट चेंज इन द कमिटी, क्योंकि उस क्रेडिटर के बजाय दूसरे का नाम आ जाएगा ना अब जो असाइनी है, तो विद इन 2 days ऑफ द चेंज ये किसको बताएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और जितने भी क्रेडिटर हैं उनको भी, ठीक है. सेल ऑफ एसेट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसमें यह है कि अगर कोई अनएनकम्बर्ड एसेट है, ठीक है, जो सिक्योर्ड एसेट है उनको तो बेच ही नहीं सकते, ठीक है ना. अगर अनएनकम्बर्ड एसेट है और उनको अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बेचना है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी बुक वैल्यू 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, provided that the book value of all assets sold
during fast track process period in aggregate under this sub regulation shall not exceed 10% of the total claims admitted by the IRP. ठीक है. And a sale of assets under this regulation shall require the approval of the committee. And a bona fide purchaser of assets sold under this regulation shall have a free and marketable title. ठीक है. फिर असिस्टेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वही सेक्शन 19 वाला जो प्रोविजन है कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपने कोई भी कहीं से भी आपको लोकल असिस्टेंस चाहिए, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं पर भी, तो उसके लिए आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को परमिशन दोगे. ये आपका सेक्शन 19 से गवर्न होता है. फिर फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट क्या है? जैसे हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट होती है, लिक्विडेशन कॉस्ट होती है, इसी तरह से फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट है. इसमें भी वही चीज़ है, फीस पेएबल टू एनी पर्सन एक्टिंग. ठीक है, कोई कॉस्ट इनकर की, उसने किसी प्रोफेशनल को हायर किया, कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसकी. अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की उन्होंने लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं. इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, टेलीकम्युनिकेशंस है. ठीक है. अमाउंट ड्यू टू ए पर्सन हुज राइट्स आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द मॉरेटोरियम इम्पोज्ड. तो ऐसे लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं. ये कौन से लोग होते हैं? ये कहता है अमाउंट्स ड्यू टू ए पर्सन हुज राइट्स आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द मॉरेटोरियम इम्पोज्ड. अब मान लो आपका एक किराएदार है. ठीक है, अब किराएदार कंपनी चली गई CIRP में. अब कंपनी का वो किराएदार है. अब जब मॉरेटोरियम लग गया तो कंपनी के अगेंस्ट में केस तो वो कर नहीं सकता. ठीक है, अब वो केस क्यों नहीं कर सकता कि मॉरेटोरियम लग गया. ठीक है, तो ऐसा कोई आदमी जो है जिसके राइट्स प्रेजुडिशियली इफेक्ट हो गए हैं, जो अदरवाइज उसको पैसे मिलने थे, तो उस केस में ये जो उसका रेंट होगा इस पीरियड का, वो यहां पर आ जाएगा. ठीक है, मॉरेटोरियम के बाद वाला नहीं, मॉरेटोरियम से पहले का. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन और बाय द, भाई वो कह रहा है ना तो तुम खाली कर रहे ना मुझे रेंट दे रहे, ये तो बड़ा चक्कर है ना. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन और बाय द IRP टू द एक्सटेंट रेटिफाइड. IRP ने अगर कोई अपने खर्चे किए शुरू में, वो फिर अगर रेटिफाई अगर हुए तो इसमें आएंगे. ठीक है, अगर रेटिफाई नहीं हुए, कमेटी ने रेटिफाई नहीं किए, तो फिर वो खुद बियर करेगा. एक्सपेंसेस कई बार होता है, मान लो IRP खर्चे रेज करता है, जी मेरा 5 लाख रुपए कन्वेंस में लग गया. वो कहेंगे भाई 5 लाख रुपए नहीं, हम तो 1 लाख रुपए देंगे, तो 1 लाख रुपए देंगे. अगर उसके बाद उसको क्लेम करना तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा. फिर वो expenses incurred on or by the resolution professional fixed under regulation 33 and other costs directly relating to the fast track process. तो ये सारी फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनती हैं. ये 32 और 33 वाली हम आगे देख लेंगे. 31 में क्या है? इसेंशियल सप्लाईज. इसेंशियल सप्लाईज में इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, टेलीकम्युनिकेशन है और IT सर्विसेज है. ठीक है, कि दीज आर नॉट ए डायरेक्ट इनपुट टू द आउटपुट प्रोड्यूस्ड और सप्लाइड बाय द कॉर्पोरेट डेटर. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये नहीं कि कोई आप IT सर्विसेज ही सेल परचेज कर रहे हो, वो नहीं है. ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या है? जो वाटर जो है, जो पीने का पानी, वो तो ठीक है, लेकिन आप कोई मान लो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है ना, उसके लिए आपको कोई पानी चाहिए, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा एसेंशियल सर्विसेज में. ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ द IRP. कॉस्ट ऑफ द IRP में क्या है? जो एप्लीकेंट है इट विल फिक्स द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन और बाय द IRP. एप्लीकेंट इसमें फिक्स करेगा. ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फिक्स एक्सपेंसेस वेयर एप्लीकेंट हैज नॉट फिक्स्ड एक्सपेंसेस. ठीक है, भाई कोई भी कंपनी है, मान लो किसी कंपनी को आपको फास्ट ट्रैक में ले जाना. ठीक है, आप कहते हो जी ये मेरी स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी फास्ट ट्रैक में आएगी. अब आपके पास एक बंदा आया, एक एप्लीकेंट आया, वो कहता जी मेरी एप्लीकेशन लगा दो इसमें. ठीक है, हमने क्या पढ़ा फास्ट ट्रैक में? कोई भी क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन लगा सकता है. ठीक है, तो अब वो जो खर्चे हैं, IRP कहेगा जी मेरी तो फीस है 5 लाख रुपए. वो 5 लाख रुपए देगा कौन? वो एप्लीकेंट देगा. ठीक है, और अगर मान लो एप्लीकेंट ने फिक्स नहीं किए, उस केस में कौन देगा? उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिक्स करेगी. एप्लीकेंट शैल बियर द एक्सपेंसेस विच शैल बी रीइंबर्स्ड बाय द कमेटी टू द एक्सटेंट इट रेटिफाइज. तो एप्लीकेंट बियर करेगा अगर कोई रेटिफाई नहीं होता तो. ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रेटिफाइड बाय द कमेटी शैल बी ट्रीटेड एज फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट. जो एक्सपेंसेस रेटिफाई कर देगी कमेटी वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, जो नहीं करेगी वो एप्लीकेंट बियर करेगा. ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? फीस टू बी पेड टू IRP एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एंगेजिंग प्रोफेशनल एडवाइजर्स टू बी इनकर्ड बाय द IRP. फिर रेजोल्यूशन प्रोसेस प्रोफेशनल कॉस्ट में क्या आएगा?
the committee shall fix the expenses to be incurred on or by the resolution professional and the expenses shall constitute fast track process cost. जो आरपी के खर्चे होंगे वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, लेकिन कमेटी फिक्स करेगी कितने एक्सपेंसेस होंगे। भाई ऐसे तो नहीं, अनरीजनेबल तो नहीं कर सकते ना। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? फीस पेड टू द आरपी एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एंगेजिंग प्रोफेशनल एडवाइजर्स टू बी इनकर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर वो कहता है जी मैंने अकाउंटेंट को एंगेज करना है, मैंने किसी कंसल्टेंट को एंगेज करना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी इसके अंदर आएंगे। फिर रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान में क्या है कि ये आपका होगा जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो क्या करेगा, ये इनको देगा फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है, after the receipt of resolution plans in accordance with the code and these regulations the RP shall, अब ये जो फेयर और लिक्विडेशन वैल्यू है ये तो इसको शुरू में पता चल गई। जो हमारा आरपी है उसको तो 7 दिन में उसने अपॉइंट कर लिया, एक इसमें रजिस्टर्ड वैल्यू अपॉइंट करना है, ठीक है ना। जो सीआईआरपी या लिक्विडेशन है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा करने हैं। यहाँ पर एक उसने उसको बता दिया कि भाई ये फेयर वैल्यू है और ये लिक्विडेशन वैल्यू है। अब बात ये आगे कब बताएगा और लोगों को कब बताएगा, ठीक है। ये बताएगा टू एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन रिसीविंग एन अंडरटेकिंग। उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी की अंडरटेकिंग ले लेगा, ठीक है, कि भाई ये जो है इट शैल नॉट बी यूज्ड टू कॉज एन अनड्यू गेन और लॉस, ठीक है। तो उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी की अंडरटेकिंग लेकर के ये प्रोवाइड कराएगा मेंबर्स ऑफ द कमेटी को, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द फेयर वैल्यू एंड द लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जैसे सीआईआरपी में हमने पढ़ा कि सीआईआरपी में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, मैंने आपको एक फॉर्मेट भी दिखाया था, रिकॉर्डिंग में भी होगा अवेलेबल। तो उसमें बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहता है। ऐसा रिकॉर्ड रहता है कि जिससे जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, जो नया इंटेंडिंग बायर है, उसको एक आइडिया मिल सके कि भाई मैं कितना कोटेशन दे सकता हूँ इस कंपनी को खरीदने के लिए, ठीक है, इन ए लेमैन्स लैंग्वेज। तो अब ये सबमिट करेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एक तो हर एक मेंबर ऑफ कमेटी को दे देगा विद इन 2 वीक्स ऑफ द अपॉइंटमेंट। जितने भी मेंबर ऑफ कमेटी हैं उनको ही दिया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा। और 1 मिनट में एक कॉल ले लूं, ये आदमी बड़ी देर से परेशान कर रहा, पता नहीं कौन है कौन नहीं। हाँ जी, तो इसमें क्या था कि ये जो है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की कॉपी विद इन 2 वीक्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट देगा हर एक मेंबर ऑफ कमेटी को, और जितने भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनको भी देगा, लेटेस्ट बाय द डेट ऑफ इनविटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या रिकॉर्ड रहेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद सच डिस्क्रिप्शन एज आर जनरली नेसेसरी, ठीक है, ये हम सीआईआरपी में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स डिटेल सच एज डेट ऑफ, भाई एसेट है तो ये कब खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, अब उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है। भाई मान लो कोई बिल्डिंग है, उसमें बिल्डिंग में पूरा डिटेल देगा, इतने एकड़ की बिल्डिंग है, इतने उसमें फ्लोर हैं, इस डेट में बनी थी। कोई कार है तो कार में देगा कि भाई इतना 2005 का मॉडल है, ठीक है, उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका, डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में देते हैं। लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। भाई कई बार ये होता है कि ना 10 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ किसी कंपनी का, ऐसा भी हो जाता है। वो क्या करते हैं फिर उसमें पिछले 2 साल का ऑडिट कराते हैं, पर पिछले 2 साल का जब करेगा तो पिछला भी रिकॉर्ड तो बनाना ही पड़ता ना उनको। एंड प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर मेड अप टू ए डेट नॉट अर्लियर देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि अब मान लो अब जैसे चल रहा है हमारा जनवरी, ठीक है, तो हमारे पास जो मार्च 21 है, मार्च 21 के तो ऑडिटेड हो जाएंगे, मार्च 21 का ऑडिटेड हो जाएगा और मार्च 20 का ऑडिटेड हो जाएगा। लेकिन मार्च 21 के बाद भी अब तो जनवरी इतने महीने हो गए, ठीक है ना, 9-10 महीने होने को आए, तो इसमें क्या करेगा 14 दिन से पुराना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वो क्या करेगा दिसंबर तक का रिकॉर्ड एक अनऑडिटेड बना लेगा, दिसंबर 2021 तक का।
फिर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स रहेगी कंटेनिंग द नेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, द अमाउंट्स क्लेम्ड बाय देम, द अमाउंट ऑफ देयर क्लेम्स एडमिटेड एंड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सारी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर रहेगी इसके अंदर। पर्टिकुलर्स ऑफ डेट, अगर आप इस जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में जितनी भी है ये रेगुलेशन अगर आप CIRP रेगुलेशन से पढ़ोगे तो सेम सेम है, ठीक है। वही डिटेल्स ऑफ ऑल मटेरियल लिटिगेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स वगैरह ये सब चीजें। फिर इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब आपको यहां क्या करना है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल इशू एन इन्विटेशन इंक्लूडिंग इवेल्युएशन मैट्रिक्स, ठीक है, टू द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान एट लीस्ट 15 days बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनको ये इवेल्यूशन मैट्रिक्स देगा और ये है, and where the invitation does not contain the evaluation matrix, the resolution professional shall issue with the approval of the committee the evaluation matrix to the prospective resolution applicant at least 8 days before the last date of submission of resolution plan, ठीक है। And the resolution professional may modify the invitation evaluation matrix with the approval of the committee, तो कभी भी उसको amend कर सकते हैं। और जो टाइमलाइंस हैं स्पेसिफाइड शैल नॉट अप्लाई टू एन ऑनगोइंग फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या है कि पहले जो प्रोसेस इसमें भी अमेंडमेंट होती रहती हैं, तो वो ये कहता है कि जो टाइमलाइंस स्पेसिफाइड इस रेगुलेशन में है वो अगर कोई पुरानी है उस पर अप्लाई नहीं होंगी। वेयर ए पीरियड ऑफ लेस देन 21 days इज लेफ्ट फॉर सबमिशन। ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अब रेजोल्यूशन प्लान में क्या रहेगा, रेजोल्यूशन प्लान में रहेगा कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो ट्रांसफर भी कर सकता है, वो कहेगा जी मैं तो कुछ एसेट्स को बेचूंगा या सारे एसेट्स को बेचूंगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगा, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेट, या मर्जर करूंगा, कंसोलिडेशन करूंगा, रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा। ये ऐसा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोल सकता है कि मैं इस तरह से इस कंपनी को लूंगा, या कोई अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है ना, या मॉडिफाई करूंगा, या क्योरिंग और वेविंग ऑफ एनी ब्रीच। ये भाई टर्म्स ऑफ डेट आपकी 5 साल की है तो मैं तो उसको 7 साल करूंगा, इस तरह से। या रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर, जो हेयर कट की कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें। एक्सटेंशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, आपकी LLP है मैं उसको कंपनी बनाऊंगा, कंपनी है LLP बनाऊंगा, लिस्टेड है अनलिस्टेड करूंगा, अनलिस्टेड है लिस्टेड करूंगा। इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज, चेंज इन पोर्टफोलियो, आप X गुड्स बनाते हो मैं X और Y बनाऊंगा, ठीक है। तो जो भी पोर्टफोलियो ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उसको भी मैं, ये सारा रेजोल्यूशन प्लान में वो देता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज करूंगा, अगर कोई अप्रूवल होगी तो मैं बोलूँगा। फिर मैंडेटरी कंटेंट्स क्या रहेंगे, मैंडेटरी कंटेंट्स इसमें रहेंगे, एक तो ये कि he will identify the specific source of funds that will be used to pay the fast track process cost, ठीक है। अब वो कहेगा कि भाई स्पेसिफिक सोर्स बताना पड़ेगा उसको कि ये मैं फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट, या प्रोवाइड दैट फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट विल बी पेड इन प्रायोरिटी टू एनी अदर क्रेडिटर। भाई फास्ट ट्रैक प्रोसेस कॉस्ट में है क्या, इसेंशियल गुड्स हैं उसके हैं, या जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के खर्चे हैं, भाई उसके लिए कह देगा मैं अभी फंड्स इन्फ्यूज कर देता हूँ, या मैं बैंक गारंटी दे देता हूँ, या मैं एस्क्रो अकाउंट खोल देता हूँ, इस तरह से। तो स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फंड्स बताएगा, ठीक है। दूसरा ये कम से कम इतना तो दे ना। फिर लिक्विडेशन वैल्यू देगा ड्यू टू ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड प्रोवाइड फॉर सच पेमेंट इन प्रायोरिटी टू एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि हमें मालूम ही है कि नॉर्मली तो फाइनेंशियल क्रेडिटर से ही कमेटी बनती है, ठीक है। जो हमने ऑपरेशनल क्रेडिटर वाली कमेटी पढ़ी वो तो तभी बनती है अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं हो तो अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं है शामिल, जो नॉर्मली नहीं होते, तो उनको क्या मिलेगा, ठीक है। उसके लिए वो लिक्विडेशन वैल्यू का प्रोविजन करता है। लिक्विडेशन वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, जो किसने रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूएशन करवाया, आरपी ने, वहां से, ठीक है। ये लिक्विडेशन वैल्यू खास बात है, उसको नहीं पता जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है। इसका मतलब वो अपने आप से आइडिया लगाए कि भाई कितनी वैल्यू उसको देनी है ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ठीक है। विच शैल इन एनी इवेंट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब इसमें यह भी दिया गया है कि जब अप्रूव हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर ये पैसे दे दिए जाएंगे। ऐसी कोई टाइम लिमिट CIRP में नहीं है, फास्ट ट्रैक में है। लिक्विडेशन वैल्यू ड्यू टू डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर हमने पढ़ लिए कौन है, जिन्होंने अप्रूव नहीं किया था रेजोल्यूशन प्लान को, ठीक है। भाई कोई भी प्लान 66%, 75% पे अप्रूव होता है फास्ट ट्रैक में, 66% होता है इन नॉर्मल CIRP। तो जिन्होंने नहीं प्लान अप्रूव किया वो डिसेंटिंग में आ जाएंगे। तो वो ये कहता है जिन्होंने फेवर में दिया उससे पहले इनको भी दो,
फिर रेजोल्यूशन प्लान shall include a statement as to how it has dealt with the interest of all stakeholders. तो ये सारी चीजें बताएगा कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसको कैसे इन्होंने डील किया है, ठीक है। एक तो ये टर्म्स ऑफ प्लान रहेंगी, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल रहेगा, फिर मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ बिजनेस कैसे होगा, ये सब CIRP जैसी ही चीजें हैं, ठीक है। फिर एडिक्वेट मीन्स फॉर सुपरवाइजिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ए रेजोल्यूशन प्लान शैल कंटेन डिटेल्स ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड अदर कनेक्टेड पर्सन्स टू इनेबल द कमेटी टू असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ सच एप्लीकेंट एंड अदर कनेक्टेड पर्सन्स टू टेक ए प्रूडेंट डिसीजन while considering the resolution plan for its approval. तो रेजोल्यूशन प्लान में क्या रहेगा, डिटेल्स रहेगी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की और जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जज करनी है क्रेडिबिलिटी ऑफ सच एप्लीकेंट एंड अदर कनेक्टेड पर्सन्स, ठीक है। डिटेल्स में क्या रहेगा, डिटेल्स में आइडेंटिटी रहेगी। भाई आप कहते हो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और अदर कनेक्टेड पर्सन्स की डिटेल बताओ, तो डिटेल में उनकी आइडेंटिटी रहेगी। कन्विक्शन रहेगा फॉर एनी ऑफेंस इफ एनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years। फिर क्रिमिनल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है कोई तो, या डिस्क्वालिफिकेशन है टू एक्ट एज डायरेक्टर, ठीक है, वो जो 32A में डिस्क्वालिफिकेशन है, या आइडेंटिफिकेशन एज ए विलफुल डिफॉल्टर है, या डिबारमेंट है फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट, ट्रांजेक्शन है ये, क्योंकि CIRP वाले सारे रेगुलेशन यहाँ पर भी लग रहे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन इफ एनी विद द कॉर्पोरेट डेटर इन द प्रीसीडिंग 2 years। फिर एक्सप्रेशन कनेक्टेड पर्सन्स कौन है, हु आर प्रोमोटर्स और इन दी मैनेजमेंट और कंट्रोल, और पर्सन जो है हु विल बी प्रमोटर, मतलब फ्यूचर प्रमोटर, अभी नहीं है। रेजोल्यूशन प्लान में बताता भाई ये भी प्रमोटर होगा, तो अभी एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव जो भी है, पर्सन हु विल बी प्रमोटर्स और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल, ठीक है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी। फिर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा विद इन द टाइम गिवन, विद द टाइम गिवन। आगे चलते हैं। The resolution professional shall submit to the committee all resolution plans, जितने भी जो प्लान्स आएंगे सबको सबमिट कर देगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। और उनमें क्या बताएगा, एक प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। फिर कमेटी का डिसीजन है, कमेटी किसको अप्रूव करती है, ठीक है। फिर कमेटी जब अप्रूव करेगी तो वो क्या करेगी, इट में स्पेसिफाई द अमाउंट पेएबल फ्रॉम रिसोर्सेज अंडर द रेजोल्यूशन प्लान फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 37, ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द कमेटी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट लीस्ट 15 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम पीरियड कितना है, 90 days है, 90 days से 15 दिन पहले इसको 75 days में अपना रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करके सबमिट करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। विद दिस सर्टिफिकेशन, वो उसमें सर्टिफाई करेगा कि जो कंटेंट्स हैं रेजोल्यूशन प्लान के वो सारी जो रिक्वायरमेंट है कोड और रेगुलेशंस की वो मीट करते हैं। इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमेटी, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द टाइमलाइन स्पेसिफाइड इन दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू एन ऑनगोइंग फास्ट ट्रैक, ठीक है। अच्छा, और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो जो भी ऑर्डर आएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी, वो सारे पार्टिसिपेंट्स को भी देगा और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को भी देगा, ठीक है। A provision in resolution plan which would otherwise require the consent of the members or partners of the corporate debtor, as the case may be, under the terms of the constitutional document, shall take effect notwithstanding that such consent has not been obtained. क्या होता है, कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में लिखा होता है भाई कंपनी को आप सेल करोगे, परचेज करोगे, मर्जर करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी डायरेक्टर्स की फलाना, ठीक है ना, तो वो मान ली जाएगी, उसकी कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है अगर रेजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया तो, ठीक है। नो प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द IRP प्रायर टू द फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट से पहले जो भी अगर कोई एक्शन है तो उस पर IRP RP पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। एंड ए पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एन ऑर्डर सीकिंग द असिस्टेंस ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि जो उस बिजनेस का इंचार्ज है, ठीक है, मान लो एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, अब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद में इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी 2 कंपनियों को हम मिलाएंगे, वहां पर यूनियन का कोई झगड़ा हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दी जाएगी कि भाई हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प हो, ये बात है। फिर एक्सटेंशन,
एक्सटेंशन जो है आपको क्या करना है, अगर 90 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको जो है कमेटी इंस्ट्रक्ट करेगी रेजोल्यूशन प्रोविजनल को कि भाई आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है। और जब रेजोल्यूशन प्रोविजनल को ये मिल जाएगी इंस्ट्रक्शन, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये था हमारा कुछ फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस। एक बार अब दोबारा हमारी ओरिजिनल पीपीटी पे चलते हैं हम, जो इससे पहले वाली पीपीटी थी हमारी। ये सेक्शन वाइज कवरेज यहां पर थे, अब ये नजर आ रही ना आपको? हाँ जी, ठीक है जी। हम लोग कहां पर थे? ये सेक्शन 57 58 हमने कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 59 पे। 59 क्या बात करता है? वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब ऐसा है, दो तरह की लिक्विडेशन कंपनीज वाली यहां पर आ गई। कौन कौन सी? अगर कंपनी पैसे नहीं दे पा रही, डिफॉल्ट है, वो सेक्शन 10 में एप्लीकेशन लगा सकती है कंपनी खुद, ठीक है। अगर कंपनी सॉल्वेंट है, पैसे दे सकती है, या उसको डेट फ्री कंपनी है, वो कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो वो वॉलंटरी लिक्विडेशन करेगी, ठीक है। ये दो प्रोविजन कंपनीज एक्ट से उठ करके यहां पर आ गए। इन दोनों के अलावा जो जैसे एक ये होता है कि भाई कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, रजिस्ट्रार फाइंड्स कि भाई ये कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो सारे प्रोविजन अभी भी कंपनीज एक्ट में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि दो तरह के प्रोविजन यहां उठ करके आ गए, बाकी सारे जो प्रोविजन है वो वहीं पर ही है कंपनीज एक्ट में। 59 पढ़ते हैं। 59 में क्या कहता है कि सीडी में इनिशिएट इफ इट हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट। तो अगर कॉर्पोरेट डेटर में दोनों आ गई, कंपनी भी आ गई और एलएलपी भी आ गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको क्या कर, जैसे पहले भी होता था, एक सिंप्लीफाइड एग्जिट स्कीम होती थी कंपनीज एक्ट में। उसमें क्या होता था, भाई आप एक एफिडेविट लगाओ कि भाई डिक्लेरेशन लगा देते थे, ठीक है, भाई अगर कोई फ्यूचर में लाइबिलिटीज आएगी उसके लिए हम जिम्मेदार है, और हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे कंपनी को बंद करके। ऐसा ही कुछ प्रोविजन यहाँ पर भी है। तो एक तो डिक्लेरेशन हो जाता है फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर। उस केस में क्या होगा कि इट हैज मेड फुल इंक्वायरी टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी हैज नो डेट और एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल। वो कह देते हैं भाई या तो ये डेट फ्री कंपनी है, या अगर डेट है तो वी आर एबल टू पे, इट इज सॉल्वेंट, ठीक है। एंड कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, ठीक है। एक तो ये डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा देंगे ऑफ द प्रीवियस 2 ईयर्स, और रिपोर्ट लगा देंगे ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स कि भाई ये हमारे एसेट्स हैं। और इसके 4 पहले तो एक डिक्लेरेशन फाइल करना है, ठीक है। और इस डिक्लेरेशन के बाद में क्या करना है, विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है जनरल मीटिंग में, ठीक है। अगर आपका कोई डेट ही नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई डेट है तो क्रेडिटर्स भी जो है अप्रूव करेंगे रेजोल्यूशन को, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए कंपनी ओज एनी डेट, तो क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू शैल अप्रूव द स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन। तो 3 चीजें हो गई। सबसे पहले तो एक डिक्लेरेशन हो गया मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर से इन केस ऑफ एलएलपी। दूसरी बात हो गई, दूसरा इन्होंने लगा दिया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा दी, ठीक है। और इसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है इन जनरल मीटिंग। अगर कोई डेट नहीं है तो इतना ही काम करना है, अगर डेट है तो क्रेडिटर्स के भी ये अप्रूवल ले लेना है, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू। वो जो ये वाली स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है जनरल मीटिंग में, इसको ये क्रेडिटर्स भी अप्रूव कर देंगे 2/3 इन वैल्यू विद इन 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन। और कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेल नोटिफाई दी आरओसी एंड बोर्ड विद इन 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन एंड और सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। तो कंपनी आरओसी को बता देगी और आईबीबीआई को बता देगी विद इन 7 डेज ऑफ सच रेजोल्यूशन, ठीक है। और जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, ये डेट ऑफ रेजोल्यूशन होगी। जो एजीएम में आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, तो वही डेट जो वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन आपकी मानी जाएगी। एंड ऑन कंप्लीट लिक्विडेशन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिसोल्यूशन। तो उस केस में जब ये लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन लगाओगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर डिसोल्यूशन। विद इन 14 days फ्रॉम सच ऑर्डर फॉरवर्ड इट टू द अथॉरिटी वेयर कॉर्पोरेट पर्सन इज
रजिस्टर्ड। ये वॉलंटरी लिक्विडेशन के भी हम पूरे रेगुलेशंस पढ़ेंगे, जैसे हमने फास्ट ट्रैक के रेगुलेशन पढ़े ना, ऐसे ही वॉलंटरी लिक्विडेशन के भी रेगुलेशंस पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा इसमें ये कोड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में हम डिटेल में CIRP के भी रेगुलेशन पढ़ेंगे, लिक्विडेशन प्रोसेस के भी रेगुलेशंस पढ़ेंगे और वॉलंटरी लिक्विडेशन के भी रेगुलेशंस पढ़ेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 ये कहता है कि अब इसको जरा क्विकली कर लेते हैं हम 77 तक, इसमें कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, ठीक है, 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद में फिर हम CIRP रेगुलेशंस नेक्स्ट क्लास में CIRP रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 60 हमारा ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स इज NCLT, ठीक है जी। अच्छा, और कॉर्पोरेट गारंटर या जो पर्सनल गारंटर हैं कॉर्पोरेट डेटर के, उस केस में भी NCLT है, ठीक है। ये सेक्शन 60 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन लगी है वो पहले पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में लग गई, ठीक है। तो पर्सनल गारंटर की जो एप्लीकेशन है वो उसके लिए भी क्या कहता है, ये NCLT ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। लेकिन अगर आप सेक्शन 60 डिटेल में पढ़ोगे तो सेक्शन 60 में ये लिखा है कि कई बार क्या होता है, अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में एप्लीकेशन है तो वो तो DRT है, उसमें इंडिविजुअल की एप्लीकेशन जो DRT में लगी है और उसी कंपनी की IBC स्टार्ट हो गई तो वो एप्लीकेशन भी फिर NCLT में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। वो डिटेल में हम जो है इसको पढ़ेंगे बाद में। लेकिन मोटा मोटा ये है कि कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए NCLT एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और जो कॉर्पोरेट गारंटर हैं या जो पर्सनल गारंटर हैं ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, उसके लिए भी NCLT है। सेक्शन 62 बात करता है कि एपेलेट अथॉरिटी NCLAT है, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ कॉर्पोरेट पर्सन्स की, हम ये पढ़ रहे हैं पार्ट 2, तो पार्ट 2 में सिर्फ कॉर्पोरेट की ही बात कर रहे हैं। 62 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी NCLAT के ऑर्डर के अगेंस्ट में, सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं होगा। और सेक्शन 64 ये कहता है कि जो NCLT है और जो NCLAT है इनको भी टाइम लिमिट्स को एडहेयर करना है। हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ना ही एप्लीकेंट के लिए ना ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ के लिए। जितने भी टाइमलाइंस इसमें दे रखी हैं, जैसे 180 डेज, 90 डेज, 45 डेज, 14 डेज, 10 डेज, जितने भी हैं, ठीक है ना, तो ये सारी जो हैं ये डायरेक्टरी हैं, मतलब कोशिश करनी है इसको मीट करने की। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो उसमें एक्सटेंशन अलाउ हो सकती है, दोनों को ही, एप्लीकेंट को भी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। दे विल ट्राई फॉर एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड दे विल रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिले, ठीक है भाई। इन्होंने तो एक्सटेंशन, अगर NCLT के पास डिले हो गया तो इन्होंने तो करना नहीं कुछ, इन्होंने थोड़ी कोई अप्लाई करना एक्सटेंशन के लिए, एप्लीकेंट ही करेगा। लेकिन अगर NCLT भी टाइम लिमिट एक्सीड करती है तो दे विल रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिले, ठीक है। जैसे NCLT के पास 14 डेज के टाइम के अंदर एडमिट करनी होती है या रिजेक्ट करनी होती है, अगर 14 डेज में नहीं कर पाए तो दे विल रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिले, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है NCLT का या जो चेयरपर्सन है NCLAT का, दे में एक्सटेंड द पीरियड बाय 10 डेज, उनके पास स्पेशल पावर है 10 दिन की, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास सेक्शन 65 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 65 ऑनवर्ड्स का ये पेनल्टीज की बात करते हैं कि फ्रॉडुलेंट या मेलिशियस इनिशिएशन ऑफ CIRP या लिक्विडेशन या वॉलंटरी लिक्विडेशन। भाई आप चाहते हो कि आपने कुछ फ्रॉड किया हुआ, आपकी GST की लाइबिलिटी, आप कहते हो यार एक एप्लीकेशन लगवा दो IBC में, कंपनी बंद हो जाएगी, सारा टंटाई खत्म हो जाएगा, आपके वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, तो उस केस में आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। 66 ये बात कहता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग या रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अगर कोई आपकी कंपनी फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग या रॉन्गफुल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट द पर्सन लायबल फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू एसेट्स, ठीक है, तो वो कहेंगे भैया ये पैसे भरो आप। 67 ये कहता है कि इन केस एनी चार्ज इज क्रिएटेड और मॉर्टगेज लाइबिलिटी इज टू बी बोर्न बाय, अगर मान लो उसने कोई चार्ज क्रिएट कर दिया, कोई मॉर्टगेज कर दी, तो लाइबिलिटी जो उसकी है उस बंदे को ही बियर करनी पड़ेगी। 66 में क्या कहता है? 66 में कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग, इसमें क्या है कि सेक्शन 10A हमारा आया था, सेक्शन 10A आया था कोविड टाइम में, कि कोविड टाइम में अगर कोई भी डिफॉल्ट हो गया तो उस केस में कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है।
66 जैसे हमने पढ़ा, 66 फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग की बात करता है। तो इसमें ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नो एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट अगेंस्ट विच इनिशिएशन ऑफ CIRP इज सस्पेंडेड। ठीक है, तो अगर CIRP ही सस्पेंडेड है तो ये वाली एप्लीकेशन भी नहीं लग सकती, ये मतलब है इसका। फिर 68 कहता है कि भाई पनिशमेंट फॉर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विद इन 12 months प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट और एट एनी टाइम आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। आपने कोई प्रॉपर्टी छुपा ली, प्रॉपर्टी मतलब कैश भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है, तो उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 years to 5 years, या फाइन हो सकता है 1 लाख to 1 करोड़। इसका हमने सारे पेनल्टी चार्ट बना रखे हैं, तो पेनल्टी चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसी PPT में भी ये दिए हुए हैं, ठीक है। इफ यू हैव एंटर्ड इनटू एनी ट्रांजैक्शंस फॉर डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, आपने कोई गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कंसीलमेंट कर दिया या रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया टू डिफ्रॉड क्रेडिटर, तो उस केस में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल से 5 साल तक की, या फाइन हो सकता है 1 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का, या दोनों, ठीक है। लेकिन अगर ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 5 साल पहले हुआ तो इट इज़ नॉट पनिशेबल, ठीक है। फिर सेक्शन 70 ये कहता है कि भाई अगर ऑन और आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, अगर कोई भी पर्सन ही डज नॉट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, या डज नॉट डिलीवर प्रॉपर्टी, या डज नॉट डिलीवर बुक्स एंड पेपर्स, या डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, भाई आप RP अपॉइंट हो गए, ठीक है, कंपनी वाले आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, ठीक है, या आपको प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर कर रहे, आपको बुक्स ही नहीं दे रहे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, तो उस केस में भी पनिशमेंट है 3 years to 5 years, या फाइन है 1 लाख to 1 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर IP के ऊपर ऐसा कोई चार्ज है तो IP के ऊपर इंप्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, या फाइन हो सकता है 1 लाख to 5 lakhs या बोथ, ठीक है। भाई इसमें एनी पर्सन है जाता है सेक्शंस में ना। फिर सेक्शन 71 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। आपने कोई बुक्स में फॉल्सिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, ऑन एंड आफ्टर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो उस केस में 3 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है, या 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। फिर पनिशमेंट फॉर विलफुल एंड मेटीरियल ओमिशंस, अगर ऑफिसर ने कुछ किया है तो 3 साल से 5 साल तक का है, या 1 लाख to 1 करोड़, या बहुत है। फिर 73 बात करता है ये सारे पेनल्टी वाले सेक्शन है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स, तो वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट डेट, ये कभी भी हो तो 3 years to 5 years तक की इम्प्रिजनमेंट है, या 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है, या दोनों है। आप ये पेनल्टी प्रोविजंस अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो इसमें पनिशमेंट है वो 3 साल से 5 साल तक की है, या 1 लाख to 1 करोड़ है। तो आपको 2 तरह से याद कर लेनी है, भाई 3 साल से 5 साल तक की कहाँ है, 1 लाख to 1 करोड़, और अदर देन इसमें कहाँ है, ठीक है ना, जिसमें 1 साल से 5 साल तक है, या इस तरह से, तो उसे जल्दी आपको याद हो जाएगा। चार्ट भी मैंने दे दूंगा आपको। फिर इसके बाद आते हैं पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मॉरेटोरियम और द रेजोल्यूशन प्लान। अब कॉन्ट्रावेंशन किसने किया उसके ऊपर ये पेनल्टी है। अगर कॉर्पोरेट डेटर या ऑफिसर ने किया तो 3 साल से 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का फाइन है, या दोनों है। फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मॉरेटोरियम बाय क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स ने किया तो 1 year to 5 years तक की इम्प्रिजनमेंट है, या 1 लाख to 1 करोड़ का फाइन है, या दोनों है। फिर कॉन्ट्रावेंशन बाई ऑफिसर या क्रेडिटर ने अगर किया तो 1 year to 5 year, 1 लाख to 1 करोड़, या दोनों। ये है अलग अलग केस में किसने कॉन्ट्रावेंशन किया उसके हिसाब से पेनल्टी है। 75 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन एप्लीकेशन। आपने जो एप्लीकेशन लगाई उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर आपने सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगाई उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है, ठीक है। फिर पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिस्प्यूट बाई ऑपरेशनल क्रेडिटर। जैसे कि हमें मालूम है कि सेक्शन 9 की अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको सेक्शन 8 की कंडीशंस मीट करनी होती हैं। सेक्शन 8 में ये कंडीशन है कि भाई कोई डिस्प्यूट नहीं है, अगर और इसका एफिडेविट देना होता है, ठीक है ना। आपने कोई डिस्प्यूट था, कॉर्पोरेट डेट, आपने कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड नोटिस दिया अंडर सेक्शन 8, उसने बताया हमारा डिस्प्यूट है, आपने एप्लीकेशन लगा दी, उसके बावजूद उसमें बताया नहीं कि डिस्प्यूट है, तो ऐसा इसके लिए क्या पनिशमेंट है फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिस्प्यूट, 1 year to 5 years, 1 लाख to 1 करोड़, या दोनों, ठीक है। किस पर लगेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर पर। फिर 77 है, अगर आपने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाई तो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन में पनिशमेंट फॉर प्रोवाइडिंग
फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन। तुमने 3 साल से 5 साल तक की सजा है, या 1 लाख टू 1 करोड़, या दोनों। ठीक है, ये फिर जो कॉर्पोरेट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हमने दिए ना, ये हमने सारे यहां पर एक चार्ट में बना दिए। ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हैं, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। ये पीपीटी मेरी साइट पर है ना, तो इसमें सारा हमने चार्ट दे रखा, बना रखा, इसको आप देख लीजिएगा। ये फिर कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, आईआरपी, आरपी, लिक्विडेटर। वैसे जब हम रेगुलेशंस करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। अब ये जो है ना सेक्शन 78 ऑनवर्ड्स, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम रेगुलेशंस पढ़ लेंगे, क्योंकि अब हमने देखो पढ़ लिया सीआईआरपी। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है वो क्या करें, देखो हमारे पहले पुराने भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, तो उनसे उन वीडियो लेक्चर्स को सुन करके